طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے سنائے ہیں، جنہیں خدا نے شرف بخشا کہ وہ ماں کا رتبہ حاصل کریں۔ کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام مقدس کے شروع میں ہی پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 16ویں آیت سے اگر ہم پڑھیں ہیں تو وہاں پر آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا کیونکہ وہ زندوں کی ماں ہے۔ اگر ہم ایو مطلب کی میننگز کو دیکھیں ڈکشنری میں تو کہیں پر ایو کا مطلب ہے لیونگ، کہیں پر ایو کا مطلب ہے سورس آف لائف، کہیں پر ایو کا مطلب ہے زندگی یعنی لائف۔ تو آدم نے اپنی بیوی کا نام ایو اس لیے رکھا کہ اس سے اس کی نسل بڑی ہے، اس سے اس کی نسل جو ہے وہ آگے چلی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہابل، قاہن اور سیت جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا یعنی سورس آف لائف، یعنی زندوں کی ماں، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو بائبل مقدس میں بہت ساری خواتین ایسی مائیں پرانے عہد ناموں میں ہم دیکھیں تو ہمیں مل جاتی ہیں جو کہ اپنے بچوں کی بڑی اچھی پرورش کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے اس حد تک جاتی ہوئی نظر آتی ہیں جہاں پر زندگی اور موت جو ہے وہ سر پر نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سارا جو کہ ابراہیم کی بیوی تھی، اس سے اسحاق پیدا ہوا، اور پھر اگر ہم غور کرنا چاہیں موسیٰ کی ماں یوکبد کے بارے میں، اگر ہم جاننا چاہیں ہنّا کے بارے میں جس سے سیموئل پیدا ہوا، اور ہاجرہ جس سے اسماعیل پیدا ہوا، کیسے ہاجرہ جو ہے وہ اسماعیل کو لے کر جو ہے وہ دور دراز ملک کو نکل جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے ماں کی کہ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے دور دراز ملک کو نکل جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی ماں جب موسیٰ کو بچانے کے لیے اسے پانی کی ایک ٹوکری میں لٹا دیتی ہے، اپنے بچے کی جان بچانا چاہتی ہے۔ تو بہت ساری خواتین ہمیں پرانے عہد ناموں میں مل جاتی ہیں جو کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے فائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، خدا سے مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور جس طرح ہنّا جو ہے خدا کے حضور گری رہتی تھی گھٹنے دیکھ کر کہ مجھے اولاد مل جائے، اور جب خدا نے ہنّا کو اولاد بخشی، سیموئل بخشا، تو پھر اس نے سیموئل جو ہے وہ خدا کو دے دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری اور بھی ماؤں کا ذکر ملتا ہے جس میں ہمیں ربکہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ یعقوب اور عیساؤ کی ماں تھی۔ تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری مائیں جو ہیں پرانے عہد ناموں میں ہی ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کی زندگی پر تھوڑا بھی غور کرنا شروع کریں گے تو 25 منٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ، یا 20 منٹ جو ہے وہ ان کی زندگی کے بارے میں نکل جائیں گے۔ لیکن میں آج اس سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حوا کا مطلب، اگر ہم اوریجنل ٹیکسٹ میں جائیں تو وہاں پر خوا لفظ استعمال ہوا ہے، CHAVEH ہبرو میں، اس کے لیے جس کا مطلب ہے کہ سورس آف لائف۔ جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا تو پیدائش میں ہی ہمیں یہ بیان ملتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اور وہ خصوصیات جو خدا کے اندر تھی خدا نے انسان کے اندر رکھ دی، اور وہ خصوصیات میں سے 2 خصوصیات جو خدا کی انسان میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز کہ وہ کریٹر ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اس پوری کریشن کو خدا نے عورت کے اندر رکھ دیا۔ خدا محبت کرنے والا ہے، خدا نے محبت کو عورت کے اندر رکھ دیا۔ مرد کے اندر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں اس طرح سے
आदम कहता है कि यहोवा कहलाएगी, जिंदों की माँ कहलाएगी। तो हम देखते हैं कि ये क्रिएशन है जो खुदा ने एक औरत के अंदर रखी। किस तरह से एक बच्चा जो है वो उसके पेट में बड़ा होता है, शरीरें बनती हैं, दिल बनता है, हाथ पांव बनते हैं। और जिस तरह से दाऊद नबी ये कहता है कि इससे पहले कि मैं अपने माँ के पेट में बन ही रहा था, तो ऐ खुदा तो मुझे जानता, तूने मेरे बेतरतीब माता को देखा है। और खुदा के बारे में वो कहता है कि तू मुझे उससे पहले भी जानता है। तो ये खुदा ने क्रिएशन जो है वो औरतों के अंदर रख दी। और बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हर शख्स पर फर्ज है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करे। और आज बच्चों ने जो टेक्स्ट पढ़े उनमें यही बात बयान की गई। और पांचवा हुक्म जो 10 अहकाम में से हमने उज़ियल में जो पढ़ा, उसमें हमने सुना कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करता कि जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि खास तौर पर वालिदैन में जो है माँ के साथ बच्चों का रिश्ता बड़ा खास होता है। और कभी आपने छोटे छोटे बेबीज को देखा होगा, जब वो जो इन्फेंट बेबीज होते हैं वो ऑल द टाइम जो है वो माँ के चेहरे की तरफ देखते रहते, चाहे वो फीड करते हुए देखते हो या जब भी वो गोदी में उठाया हो तो वो ऑल द टाइम जो है वो फेस को देखते ही रहते हैं। और ये एक लिंक है बच्चे का और माँ का। जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चा, और मेडिकल साइंस इस बात की गवाह है कि जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा होता है तो माँ जो कुछ खाती है, माँ जो कुछ सोचती है, माँ जो कुछ एक्टिविटीज करती है, उसका बच्चे की हेल्थ और उसकी मेंटली हेल्थ पर बहुत असर होता है। तो ये बात मेडिकल साइंस प्रूफ करती है कि बच्चा जब 7 महीने का या 6 महीने का हो जाता है तो माँ को सुनना भी शुरू हो जाता है। तब से माँ के साथ पेट से उसका एक लिंक कायम हो जाता है। और जब वो इस दुनिया में आता है तो वो माँ के साथ बड़ा अटैच हो जाता है, क्योंकि उसे वो जानता है कि मुझे मदर फीड में सोर्स ऑफ ईटिंग जो है वो भी यही है, खाने का जरिया भी ये है। और जब वो रोता है और माँ खासतौर पर उसे गले से लगाती है तो वो उसकी पहचान करता है, उसे जानता है। तो ये एक लिंक है जो खुदा ने औरत के अंदर रखा है, क्रिएशन। जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह से खुदा क्रिएटर है, खुदा ने एक खूबी औरत के अंदर रखी कि उसके अंदर क्रिएशन को रख दिया कि एक नया इंसान जो है वो औरत के वसीला से दुनिया में आता है। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को अपनी शबीह पर बनाया है तो उसके साथ खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, खुदा ने अनकंडीशनल लव जो है वो औरत के अंदर रखा अपने बच्चों के लिए। मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत जो है वो हर चीज की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत जो है वो सारी तकलीफों को, परेशानियों को, दुखों को, मसाइब को, बच्चा चाहे मुजरम हो, बच्चा चाहे कातिल हो, बच्चा चाहे किसी भी तरह की बीमारी में हो, लेकिन फिर भी बच्चा माँ के लिए एक जैसा होता है। उसका प्यार बच्चे के लिए वैसा ही होता है जैसा कि दूसरे के लिए होता है। ये है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मोहब्बत करना लेकिन दूसरे से तकाजा ना करना कि वो भी आपसे मोहब्बत करेगा, इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव। और खुदा इंसान के साथ अनकंडीशनल लव करता है जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हमसे प्यार करता है। जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं वो फिर भी हमें देख रहा होता है। जब हम गुनाह में होते हैं तब भी वो हमें देख रहा होता है। जब हम जो है वो मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ में होते तब भी वो हमें देख रहा होता है। और मुसरफ बेटी की मिसाल बहुत खूबसूरत मिसाल है। यही मोहब्बत खुदा की, खुदा ने जो है वो
औरत के अंदर भी इस क्रिएशन को रखा और इस मोहब्बत को रखा। औरत शायद मर्द को तो छोड़ दे, या शायद वो अपने माँ बाप को तो छोड़ दे, शायद वो दूसरों को, बहुत रेयर चांस है कि कोई औरत जो है वो मर्द की खातिर बच्चों को छोड़कर जो है वो चली जाती, बहुत कम सुनने में आता है। लेकिन बच्चों के लिए शायद वो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, या और रिश्तेदारों को छोड़ दे। ये है अनकंडीशनल लव। अगर अनकंडीशनल लव की मिसाल आपने देखनी है तो इस दुनिया में सिर्फ माँ है। माँ और बच्चों का एक दूसरे के साथ, बच्चे भी बाजुकात कर जाते हैं, बच्चे भी इतना अपने माँ बाप से करते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार बच्चों के लिए वैसे का वैसा ही होता है। उनका प्यार अपने बच्चों के लिए, वो जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चा जैसा भी हो माँ के लिए वो एक जैसा और बड़ा प्यारा होता है। तो जिस तरह से आज हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत पढ़ी, ये मैंने पहले भी इसके बारे में स्टडी की थी, लेकिन जब मैं सरमन तैयार कर रहा था तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्रैक्टिकल चीजें जो हम आम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं और करते हैं, हमें मिलता है। मिसाल की किताब, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, मिसाल की किताब 31वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक हमें एक सुघड़ बीवी का जिक्र मिलता है। जिस तरह से आदम की बीवी जो है वो पहले मां नहीं थी। पहले खुदा ने आदम और हव्वा को पैदा किया, वो मां तब बनी जब उससे नहीं तकलीफ जो खुदा ने औरत के अंदर रखी थी, जब नए लोग दुनिया में आए, जब उससे सेत पैदा हुआ, जब उससे हाबिल और काइन पैदा हुए, तब वो मां बनी। 31वां बाब उसकी 10वीं आयत में मिलता है, नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर और जान से भी ज्यादा है, उसके शौहर के दिल को उस पर इत्मीनान है और उसे मुनाफा की कमी नहीं। यहां पर नेकोकार बीवी का जिक्र किया गया है, और जैसे साम 128 में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है जो खुदावंद से डरता है उसकी राहों पर चलता है, मुबारक और सादतमंद होगा तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की माने, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की माने होगी। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की माने, फ्रूटफुल ट्री की माने होगी जिस पर, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की माने। अच्छी बीवी के साथ औलाद का भी मिल जाना जो है वो खुदा की तरफ से नेमत है, और खुदा कहता है तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर ज़ैतून के पौधों की माने, यानी कीमती औलाद जो है वो खुदा आ करेगा अच्छी बीवी के साथ। और खुदा, अगर तू खुदा से डरता है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मिसाल की किताब 31वें बाब में उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि सुघड़ बीवी के बारे में कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुर्जान से बेहतर है। 15वीं आयत में लिखा है वो रात भी को उठ बैठती है और अपने घर को खिलाती है और अपनी लोनियों को काम देती है। कभी यहाँ पर हम चार लोग बैठे हुए हैं, मर्द हज़रात, हम में से कितने होंगे जो रात को उठकर बच्चों को दूध पिलाते होंगे, या बच्चों को फीड जो है वो फीडर बना के देते हैं, या वो उठ जाते हैं जैसे तो उनको फिर से सुलाना, या वो रोते हैं तो उनको चुप कराना। तो यहाँ पर जो नेकोकार बीवी है उसका तस्करा करते हुए कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है कि रात को बार बार उठना। यहाँ पर उस बीवी के बारे में कहा है कि वो बार बार रात को उठती है, वो रात ही को बैठती है और अपने घर को खिलाती है और अपनी नौकरियों को काम देती है। उसके लिए काम इंपॉर्टेंट है।
रात को ही उठ बैठती है, उसके लिए घराना इंपॉर्टेंट है, वो रात को ही उठ बैठती है, उसके लिए फैमिली मैटर करती है, उसके लिए फैमिली जो है वो अव्वल दर्जे पर है। ये बयान हमें यहाँ पर मिलता है। और आगे चलकर हम देखें तो आज जो तलावत पढ़ी गई वो थी 25 वर्ष से लेकर 31 तक। वहां पर लिखा है इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और आंदा क़याम परस्ती है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। इज्जत और हुर्मत की पोशाक पहनने वाली वो राइचस खातून है जिसका किरदार, जिसका इनर जो है, जिसका बैरूनी किरदार नहीं बल्कि अंदरूनी जो किरदार है, उसके बारे में यहां पर हमें बयान मिलता है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। कौन सी बातें? अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने वाली है। नेकोकार खातून कौन है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने वाली है। व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट बताने वाली है, क्या गलत है क्या दुरुस्त है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, कौन सी चीजें करनी है कौन सी नहीं करनी। ये एक नेकोकार बीवी की पहचान बताई गई है। और यहाँ पर लिखा है उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। हिकमत की बातें क्या है? वो सारे तजुर्बात जो उसने अपनी जिंदगी से सीखे हैं अपने उन बच्चों को सिखाती है जो अभी तक उनके ज़हन जो है वो परवरिश पा रहे हैं, उनके ज़हनों में वो सारी चीजें नहीं है जो उसने माशरे से और अपनी उम्र के तजर्बे से सीख ली हैं। वो उनको हिकमत की बातें बताती है और उनको बताती है और उनको मना करती है अगर कोई चीज गलत है तो, अगर कुछ सही है तो उसकी तरफ ले जाती है। और यहाँ पर आगे लिखा है 27वीं आयत में, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह कर रखती है और कायले की रोटी नहीं खाती। वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खामद के लिए, माशरे के लिए जो है वो बरकत का बाइस है और वो सारे इंतजाम की खुद देखभाल करती है। सारा इंतजाम वो काहिली की रोटी बैठ कर नहीं खा रही होती। अगर हम देखें तो हम बाज़ कहते वो औरतें जो जॉब नहीं करती मेरी घर पर बैठे रहती, लेकिन वो काहिली की रोटी नहीं खा रही होती, वो पूरे घर का बंदोबस्त कर रही होती है। यहाँ पर लिखा है कि वो काहिली की रोटी नहीं खाती बल्कि अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है, अपने घराने का बंदोबस्त करती है, उनको खिलाती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है, अपने बच्चों की तरबियत करती है और सारे घर के इंतजाम को वो संभालती है। वो खातून नेकोकार बीवी है। यहाँ पर जैसे मैंने हर आयत के बाद मैं 10वीं आयत पर जाता हूँ क्योंकि एक नेकोकार बीवी के बारे में ये सारी बातें लिखी गई हैं। और ख़वातीन यहाँ पर लिखा है कि हम इन सारी चीजों को एप्रिशिएट नहीं करते जो ख़वातीन हमारे लिए खिदमात सरंजाम देती हैं, और मैं भी उनमें से हूँ। सम टाइम मैं भी एप्रिशिएट नहीं करता उन बातों को। तो यहाँ पर लिखा है उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी इसकी तारीफ करता है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई लेकिन वो सब पर सबकत ले गई। यहां पर औलाद जो है उन्हें भी वो भी उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि यहां पर नेकोकार बीवी की बात की गई जिसने अपने बच्चों की बड़ी अच्छे तरीके से परवरिश की है। जब आप सक्सेसफुल लोगों से पूछे तो वो आपको बताएंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारी किस तरह से परवरिश की, किस तरह से उन्होंने हमारी टेक केयर की, किस तरह से उन्होंने मुश्किलात उठाकर हमें पढ़ाया लिखाया, किस तरह से उन्होंने खुद काम खाकर हमें
ज्यादा दिया, किस तरह से उन्होंने खुद जो है वो अपने एक्सपेंसेस में से जो है वो जमा करने के बजाय हमारी जिंदगी पर सर्फ कर दिया। तो यहाँ पर लिखा है कि उसके बेटे और बेटियां भी उसकी तारीफ करेंगे और उसे मुबारक कहेंगे। यहाँ तक के जो नेकोकार बीवी है उसका शोहर भी उसकी प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है। और बतेरी औरतों ने फजीलत दिखाई लेकिन वो सब पर सबकत ले गए। कैसे सबकत ले गई? एंड वाली आयत में इसका हमें बयान मिलता है। लिखा है कि हुस्न, धोखा और जमाल बेसबाब है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है स्तुदा होगी। हुस्न और जमाल जो है बेसबाब है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है स्तुदा होगी, बरकत पाएगी, सक्सेसफुल होगी। लोग उसे मुबारक कहेंगे क्योंकि उसकी खूबसूरती जो है वो एक्सटर्नल ब्यूटी नहीं है, उसकी खूबसूरती जो है वो इंटरनल ब्यूटी, इनर है जो उसका खूबसूरत है। यहां पर लिखा है क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर, क्योंकि दुनियावी खूबसूरती जो है वो दिलकशी और गुमराहकुन है और वो वक्त के साथ खत्म हो जाने वाली नापायदार ब्यूटी है और वो आर्जी है और उम्र के साथ जाती रहती है। लेकिन यहां पर खवातीन उस खातून को जो कि नेकोकार है, जो सुगड़ बीवी है, उसके इनर की बात की गई है, उसकी इंटरनल कैरेक्टर की बात की गई है, अंदरूनी किरदार की, कि उसका अंदरूनी किरदार अच्छा है जिसकी वजह से माशरा, बच्चे और शोहर उसकी तारीफ करता है। और यहां पर लिखा है लेकिन वो खातून जो है उसकी कदर जो है वो मुरझान से ज्यादा है। फिर 10वीं आयत पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है क्योंकि उसकी कदर मुरझान से ज्यादा है। अब 31वीं आयत में लिखा है उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सितारिश करो। जिस चीज की वो हकदार है उसके लिए उसकी प्रेज करो और उसकी जो मेहनत है, बच्चों को वो पालती है, बच्चों को वो बड़ा करती है, बच्चों आपके लिए खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, शायद और बहुत सारे काम और पूरे घर को संभालने वाली सुगड़ खातून है। तो उसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि उसकी प्रेज की जाए क्योंकि वो प्रेज के लायक है, वो डिजर्व करती है प्रेज, और वो सिताइश, इज्जत और मोहब्बत डिजर्व करती है। वो चाहती है कि उसे भी मोहब्बत दी जाए, उसे भी जो है वो एप्रिशिएट किया जाए, उसे भी जो है वो प्रेज दी जाए। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में ओपनली लोगों के अंदर भी। और बाज़ हम लोगों में तारीफ करते हैं तो दूसरे शायद इससे कहते हैं शायद बुढ़ी के थले लगा या फलाना ये बात और वो बात बाज़। लेकिन जहां पर प्रेज बनती है वहां पर प्रेज करनी चाहिए। ये तो थी बीवी की बात कि एज अ मॉम वो किस तरह से अपने पूरे खानदान की टेक केयर करती है, अपने फैमिली की, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की, आपके घर की, ये सारी चीजों की टेक केयर करती है। तो जहां पर उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिस तरह से बाइबल में इसमें लिखा है अगर खुदा कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत का, इसी तरह से अगर कोई मदर है तो उसकी रिस्पेक्ट का। तो ये बात खुदा का कलाम हमें बताता है कि माँ तू अपने बाप की और अपने माँ की
عزت کر، اور اس کے ساتھ خدا جو ہے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں زمین پر جس پر تو رہتا ہے تیری عمر کو دراز کروں گا۔ تو خدا نے ان ساری چیزوں کے ساتھ برکتوں کا وعدہ بھی کیا ہے، خدا نے ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے بلیسنگز کا بھی وعدہ کیا، اور وہ لوگ جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں خدا ان سے خوش ہوتا ہے، خدا ان کے جو ہے وہ برکتوں پر برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے۔ سو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور خدا کے حضور میں دعا کریں۔